the Bezrite. फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओपरा में अबीएजेरी योआश का था। And his son Gideon threshed wheat by the winepress to hide it from the Midianite. और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। And the angel of the Lord appeared unto him and said unto him, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, The Lord is with thee, thou mighty man of valor. हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। And Gideon said unto him, O my Lord, if the Lord be with us, why then is all this befallen us? गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर ये सब विपत्ति क्यों पड़ती? And were be all his miracles, which our fathers told us of, saying, Did not the Lord bring us out of Egypt? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे कि क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वे कहाँ रहे? But now the Lord has forsaken us and delivered us into the hands of the Midianites. अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। And the Lord looked upon him and said, Go in this thy might, and thou shalt save Israel from the hands of the Midianites. तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। Have not I sent thee? क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? If it be so pleasing to God, I wish to take a text there upon. यदि परमेश्वर को ये भाए तो मैं इस लेख में से एक विषय चुनना चाहता हूँ। I believe about the 14th verse, where it said, If God be with us, then where is all the miracles? मेरा ख्याल है कि वह 14वें पद में है, जहाँ वह कहता है, यदि यहोवा हमारे संग होता तो वे आश्चर्य कर्म कहाँ हैं? Now, we are all acquainted with the judges of Israel. अब इस्राएल के न्यायों के बारे में हम सभी जानते हैं, And how that they had done the Israelites, the Philistines, the Midianites, the Amorites. और ये भी कि किस प्रकार फलस्तीनी मिद्यानियों व अमोरी लोगों ने इस्राएल के साथ किया। And all the different ones had come in like locusts and just eat up what they had and take it out and go on. और जो भिन्न भिन्न लोगों ने किया कि वे एक के बाद एक करके टिड्डियों की तरह आए और जो कुछ बचा था उसे चट करते गए। But did you notice they could not do that until Israel first fell away from God? मगर क्या आपने ध्यान दिया है कि वे ऐसा नहीं कर पाते यदि इज़राइल स्वयं पहले परमेश्वर को छोड़कर अलग न होता? The devil can't set a foot on you to hurt you until first you get away from God. जब तक आप पहले परमेश्वर से अलग न हो तब तक शैतान आप पर हाथ नहीं डाल सकता और न ही चोट पहुंचा सकता है। You must first remember that. आपको ये याद रखना चाहिए। Check when anything happens. See if you're in the faith or not. जब कुछ होता है तो इस बात की जांच करें कि आप विश्वास में हैं या नहीं। See that if you're right up the place with God, then remember the devil can do you no harm. You're in Christ. देखिए कि यदि आपके संबंध परमेश्वर के संग ठीक बने हुए हैं तो याद रखें कि शैतान आपकी कुछ हानि नहीं कर सकता क्योंकि आप मसीह में हैं। And this place here, we just left a few years before this had been the prophetess Deborah and Barak. और इस घटना से कुछ वर्ष पूर्व ही वहाँ एक नबिया डेबोरा और बाराक थे। And how that she had prophesied and told them what to do, and it was just exactly right. किस प्रकार से नबूवत करके उसने उन्हें बताया था कि क्या करना है और ठीक वैसे ही सब कुछ हुआ था। Barak, the great warrior, and how that they made a song of the triumph over the enemy. बाराक बड़ा शूरवीर था, किस प्रकार से उन्होंने शत्रु के ऊपर विजय पाकर जय जयगान गाया था। But as soon as they got out of the twist, right straight back into the rut they went again. मगर ज्यों ही वे गच्चा खाकर परमेश्वर से अलग हुए तो फिर से पुरानी लकीर पर लौट आए। If that isn't the picture of the church today.
क्या आज के गिरजे का भी ऐसा ही चित्र नहीं है? Just as soon as it gets out of one twist right into another and it goes. जो ही वो एक चक्र से बाहर आता है, दूसरे उस तरह के बुरे चक्र में चला जाता है। But time had come for action. लेकिन अब समय आ गया है कि कुछ किया जाए। And it's the same now. The time has come for action. और आज भी वैसा ही है कि अब समय आ गया है कि कुछ करना है। Very strange how God works, but He does it. Works in a mysterious way. परमेश्वर कैसे कार्य करता है, ये अजीब है, लेकिन वो ऐसे ही रहस्य में रीत से कार्य करता है। We read the scripture here where Gideon, scared out by the winepress. हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं कि भयभीत गिदोन दाखरस के कुंड में था। Thrashing out enough wheat before the Philistines or the Midianites found him and his daddy. वहाँ बैठकर वो गेहूं झाड़ रहा था कि कहीं फलस्तीनी और मिद्यानी लोग उसे उसके पिता को देख न लें। Out there getting a little grub for their winter's food. उनके लिए वो खादान आने वाली जाड़े की ऋतु का भोजन था। Thrashing out secretly so they couldn't find him. वह छिपकर गेहूं झाड़ रहा था कि कहीं वे लोग उसे देख न लें। Because they just come in like grasshoppers and took all they had. क्योंकि वे टिड्डी दल की तरह से आते और सब कुछ छीन कर ले जाते थे। That's the way the devil does. शैतान इसी तरह से करता है। We get a little church started, everything going fine. हम एक कलीसिया शुरू करते हैं और सभी कुछ ठीक ढंग से चल रहा होता है। How many preachers don't know this to be the truth? कितने प्रचारक भाई कह सकते हैं कि ये सच नहीं है? Just about time everything's going along fine, some old imposter will come right amongst that group and tear it to pieces. Right. जबकि सब कुछ भली प्रकार से चल रहा होता है, तभी कोई पुराना नकलची उस झुंड में आकर उसके टुकड़े टुकड़े कर डालता है। ये सच है। Snatch the church right from a man if he can do it. See? That's the devil. वह कलीसिया को किसी एक व्यक्ति के हाथों से छीन लेता है। यदि वह ऐसा करने में सक्षम है, देखिए वह शैतान होता है। Come in like grasshoppers and take out what's been given. टिड्डी दल की तरह आकर जो कुछ कलीसिया को दिया गया था सभी कुछ छीन लेता है। Now, when Gideon certainly was a scriptural man. गिदोन वास्तव में धार्मिक जन था। When the angel of the Lord said to him, जब प्रभु के दूत ने उससे कहा, and if you notice it wasn't the angel of the Lord. अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि वह प्रभु का दूत नहीं था। Here it said, and the Lord, capital L-O-R-D. ये कहा गया है प्रभु का दूत, L-O-R-D, बड़े वर्णों में, लॉर्ड। It was not an angel, it was God. ये दूत नहीं था, वह परमेश्वर स्वयं था। It was a theophany in a man in the form of God, like appeared to Abraham back in the wilderness. वह परमेश्वर था जो मनुष्य रूप में थियोफनी यानी अविनाशी देह में ठीक उसी तरह से आया था जैसे वो पहले इब्राहिम के पास वहाँ जंगल में आया था। And looked like a man, so therefore being a messenger, he was the angel of the Lord. वह मनुष्य की तरह से दिखाई दे रहा था, इसीलिए सुसमाचार दूत होने के कारण वो प्रभु का दूत था। And he appeared to him, and he said, "Thou mighty man of valor." वह उसके सम्मुख प्रकट हुआ और उसने कहा, हे शूरवीर सूरमा। Said, he's going to take him and deliver Israel by him. उसने कहा कि वह उसको लेकर उसी के माध्यम से इजराइल को छुड़ाने जा रहा है। And Gideon asked that question. और गिदोन ने वो प्रश्न पूछा। What a scriptural man that was. कैसा पवित्र शास्त्रीय जन था वो। That's the kind of man that God comes to. Somebody who knows. ऐसे ही लोगों के पास परमेश्वर आता है जो पवित्र शास्त्र के अनुसार समय को पहचानते हैं। Gideon said, if God is with us, Amen. If you are the messenger, then where is the miracles that the prophet told us about? गिदोन ने पूछा, यदि परमेश्वर हमारे संग है, यदि तू सुसमाचार दूत है, तो वे आश्चर्य कर्म क्यों नहीं हो रहे हैं जिनके लिए नबी ने कहा था। He knowed every word God went, his miracles followed him. उसे पता था कि जहाँ कहीं परमेश्वर गया, उसके आश्चर्य कर्म जरूर हुए थे। He knew that wherever God would be, miracles would be there. उसे पता था कि जहाँ परमेश्वर होगा, वहाँ उसके चमत्कार जरूर होंगे। And how can you expect God today to work in among people who doesn't even believe in miracles? How can it be? आज आप किस प्रकार से ये आशा कर सकते हैं कि परमेश्वर लोगों के मध्य काम करे, जबकि लोग आश्चर्य कर्मों में विश्वास ही नहीं करते? ऐसा कैसे हो सकता है?
And he called him the mighty man of valor. और उसने उसे हे शूरवीर सूरमा कहा। He said, now, by this you're going to deliver Israel. और उसने कहा अपनी इसी शक्ति पर जा, तू इजराइलियों को छुड़ाएगा। Now that looked like a man sitting there. And it was a man. अब देखिए कि वह दूत एक मनुष्य सा दिखाई दिया जो वहां बैठा था, वो मनुष्य था। And he looked at him. And he said, nay, my Lord, if God is with us, then why is all this trouble upon us? और गिदोन ने कहा, नहीं मेरे प्रभु, यदि परमेश्वर हमारे संग होता तो हम पर ये संकट कष्ट क्यों आ पड़ते। And where is the miracles that we're told about? और वे आश्चर्य कर्म कहाँ हैं जिनके बारे में हमें बताया गया है। Where is the things that God used to do? वे बातें कहाँ हैं जो परमेश्वर किया करता था। Now there's a good way to trust whether the messenger's right or not. अब देखिए कि बड़ा अच्छा तरीका है जिससे आप भरोसा कर सकते हैं कि सुसमाचार दूत सही है या नहीं। If he has a form of godliness, he will deny that power to do those miracles. यदि वो भक्ति का वेश भरे हुए है तो वह उस शक्ति का इंकार करेगा जिससे आश्चर्य कर्म किए जाते हैं। If he's a messenger from God, he'll not only speak of it, but he'll have it to produce it. यदि वो सुसमाचार दूत परमेश्वर की ओर से है तो न केवल वह उस सामर्थ की बातें करेगा वरन उसमें सामर्थ होगी और वो आश्चर्य कर्म करके दिखाएगा। And to show that the God that he talks about is with him and in him. और वो ये दिखाएगा कि वह परमेश्वर उसके संग और उसके अंदर है जिसकी वह बात कर रहा है। He said, if God was for us, where is all of his mighty miracles? गिदोन ने पूछा, यदि परमेश्वर हमारे संग है तो उसके महान आश्चर्य कर्म कहाँ हैं? Because we understand. Listen how scriptural Gideon was. क्योंकि अब सुनिए गिदोन कितना पवित्र शास्त्रीय जन था। Otherwise, he said, if we understand that God is a great God of mighty workings. दूसरे शब्दों में उसने कहा, हम जानते हैं कि परमेश्वर महान कार्य करने वाला महान परमेश्वर है। He's a great God of miracles. वह चमत्कार करने वाला महान परमेश्वर है। And if he is for us, and if he is with us, and he's the same yesterday, today, and forever, where can I see his miracles? यदि वो हमारे लिए और हमारे संग है और वह कल आज और युगानुयुग एक सा है तो फिर मैं उसके आश्चर्य कर्म किधर देखूं? Where can I see this God in action? इस परमेश्वर को कार्य करते मैं कहाँ देख सकता हूँ? Where's he at? If he's for us. यदि वो हमारे लिए है तो वो कहाँ है? The mighty man of valor could refer back to the old word and know it's right. वह महान शूरवीर मनुष्य पुराने इतिहास के वचन का हवाला दे सका और वह जानता था कि वो ठीक है। Because he knows this, that God is a supernatural being. क्योंकि उसे पता था कि परमेश्वर परम अलौकिक व्यक्तित्व है। And wherever a supernatural being is, he'll do supernatural signs because the supernatural is in him. और जहाँ वो परम अलौकिक परमेश्वर होता है वह अलौकिक चिन्ह प्रकट करता है क्योंकि अलौकिकता उसके अंदर ही है। You just can't get out of it. आप उसको उससे अलग नहीं रख सकते। How can you stand in the face of wind without having wind blowing? बिना हवा के चले आप हवा के सामने खुद को कैसे खड़ा महसूस कर सकते हैं? How can you get in water without being wet? बिना भीगे हुए आप कैसे कह सकते हैं कि आप पानी में खड़े हैं? Water's wet. That's the chemical of it. It's wet. पानी भीगने से जुड़ा है, वह गीला होता है, यही उसका रासायनिक गुण है। And when you get in water, you're going to get wet. Right? और जब आप पानी में जाते हैं तो गीला होना आपके लिए जरूरी है। ठीक है। And when you get in the presence of God, the supernatural, there's going to be supernatural signs and supernatural workings of a supernatural God. और जब आप उस परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं जो कि अलौकिक है तो अलौकिक अद्भुत चिन्ह और कार्य उस अद्भुत परमेश्वर के द्वारा होते ही हैं। Therefore he said, where is the working? Where is the miracles? If God be with us. इसलिए उसने पूछा, यदि परमेश्वर हमारे संग है तो वे आश्चर्य कर्म, वे चमत्कार, वो अद्भुत कार्य कहाँ हैं? Glory. That's it. महिमा हो, यही बात है। See, where God is, miracles are. देखा, जहाँ परमेश्वर है वहाँ आश्चर्य कर्म है। Where God is, the sign of God is there. जहाँ परमेश्वर है वहाँ परमेश्वर का चिन्ह है। समझे? And Gideon, very scriptural, said,
Where is these things? और गिदोन पवित्र शास्त्र के अनुसार पूछता है, ये सब चीजें कहाँ हैं? In other words, like this. दूसरे शब्दों में इस तरह कहेंगे, I am a man maybe of 50 years old, he'd say. वो कहेगा मैं 50 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति हूँ, And I've heard him talk about a God that worked miracles. और मैंने लोगों को एक परमेश्वर के बारे में बातें करते सुना है जो आश्चर्य कर्म करता था। And I went to church and I believed the priests and I believed the prophets. और मैं गिरजे गया, याजकों पर मैंने विश्वास किया, नबियों की बातों पर विश्वास किया है, And I believed the written word, all the scrolls. और मैं सभी लिखित वचन के लेखों पर विश्वास करता रहा हूँ। And I read in the scrolls where God, when He come among His people, something taking place. और मैंने लेखों में पढ़ा है कि जब परमेश्वर अपने लोगों के बीच में होता है तो कुछ विशेष घटित होता है। And Gideon didn't know but what there was a man sitting there under this oak tree. Amen. और गिदोन इससे अधिक कुछ नहीं जानता था कि बस एक मनुष्य वहाँ बांज वृक्ष के तले बैठा था। आमीन। That's all he knowed. He was a man. उसे बस इतना पता था कि वह केवल एक मनुष्य है। He said, now, if God is with us, where is His miracles at? We want to see them. उसने कहा, अब यदि परमेश्वर हमारे संग है तो उसके आश्चर्य कर्म कहाँ हैं? हम उसे देखना चाहते हैं। How scriptural that is. ये बात कितनी पवित्र शास्त्र के अनुसार है। For where the supernatural is, God and His sign would be with Him. क्योंकि जहाँ पर अद्भुतता या अलौकिकता होती है, परमेश्वर और उसके चिन्ह उस अलौकिकता के साथ होते हैं। Where God is, the sign of God is with God. We know that. हम जानते हैं कि जहाँ परमेश्वर है वहाँ परमेश्वर का चिन्ह परमेश्वर के संग होता है। If He is in His people, they will do His signs. Just exactly. यदि वो अपने लोगों में है तो वे उसके चिन्ह प्रकट करेंगे, एकदम वैसे ही। That was the question that Gideon had. ये प्रश्न गिदोन के पास था। Where is God? हाँ, परमेश्वर कहाँ है? If there is a God, if there is God with us, then let me see where His sign is. यदि परमेश्वर है और परमेश्वर हमारे संग है तो मैं देखना चाहता हूँ कि उसका चिन्ह कहाँ है। We told that He does perform them. हमें बताया गया है कि वह अपना चिन्ह दिखाता है। And if this great task lays before me, और यदि ये बड़ा काम मुझे दिया जा रहा है कि मैं इजराइल को छुड़ाऊं, maybe the old man standing there, he looked like an old man. The Bible said he had a staff in his hand. वह मनुष्य जो वहाँ खड़ा था हो सकता है बूढ़ा सा दिखाई देता हो, क्योंकि पवित्र शास्त्र बताता है कि उसके हाथ में एक लाठी थी। Read on the 6th chapter when you go home or tomorrow sometime. जब आप घर जाएं या कल किसी समय आप पूरे 6ठे अध्याय को पढ़ लीजिएगा। He had a staff in his hand. An old man looked like sitting under a tree. वह एक बूढ़ा सा दिखाई देने वाला मनुष्य था और उसके हाथ में एक लाठी थी। वह पेड़ के तले बैठा था। And he called him the mighty man of valor. और उसने उसे शूरवीर सूरमा कह के पुकारा। And he said that God was going to do this thing. And he said, God is with you. और उसने गिदोन से कहा कि परमेश्वर ऐसा करने जा रहा है और वो तेरे संग है। He said, then where is His miracles? और गिदोन ने पूछा, तब उसके आश्चर्य कर्म कहाँ हैं? If the supernatural God is here, where is the supernatural works of God? यदि वह अलौकिक परमेश्वर यहाँ है तो उस परमेश्वर के अद्भुत काम कहाँ हैं? Because if you think I'm wrong, the sign is right. Because it's scriptural. Hallelujah. क्योंकि तुम समझते हो कि मैं गलत हूँ, मगर चिन्ह तो ठीक है, वह पवित्र शास्त्र के अनुसार है। हालेलुया। That's where Gideon wanted to get to. That's where Gideon was standing. गिदोन यही चाहता था। गिदोन का पवित्र शास्त्रीय प्रश्न और आधार यही था। Oh, if there be a God that's with us, we want to see the sign that He is a God. ओ, यदि परमेश्वर है और वो हमारे संग है तो हम उसका चिन्ह देखना चाहते हैं कि वही परमेश्वर है। That He is the same God because He'll do the same signs. कि वो वही परमेश्वर है क्योंकि वह वही चिन्ह दिखाएगा। What did God do? परमेश्वर ने क्या किया? Gideon said, wait, I'll go get some an offering. गिदोन ने कहा, रुकिए, मैं जाऊंगा और कुछ भेंट लेकर आता हूँ। And he went out and killed a cat or a lamb, and he boiled it. और वो बाहर गया और कोई बैल या मेमना मारकर उसका मांस पका कर लाया। He brought bread, and he brought the lamb and set it down. The angel said, I'll wait here. वह मेमना और रोटी पकाकर ले आया और उसके सामने रख दिया और दूत ने कहा, मैं प्रतीक्षा करूंगा। Prove all things. Test it by the word. मैं सारी बातें प्रमाणित करूंगा, वचन से जांच करके दिखाऊंगा। And he said, I'll wait here, maybe 2 or 3 hours. और दूत ने कहा, मैं यहीं ठहरा रहूंगा। शायद 2-3 घंटे तक वह ठहरा रहा।
Gideon come with the broth, and with the bread, and with the meat. गिदोन रोटी, मांस और जूस लेकर आया। And the angel said, now you'll understand by this. This will prove it. और तद्दूत ने कहा, अब तू समझ जाएगा, इससे प्रमाणित हो जाएगा। He poured the broth out upon the ground for a drink offering. उसने जल की भेंट चढ़ाते हुए जूस को धरती पर उंडेल दिया। And he took the bread and the meat and laid it on a rock where he was thrashing at. और उसने मांस और रोटी उस चट्टान पर रख दी जिस पर वो गेहूं झाड़ रहा था। And took the stick from his hand like an old man a staff and touched it. और उस दूत ने एक बूढ़े मनुष्य की तरह अपने हाथ में लाठी लेकर उस भोजन को छू लिया। And when he touched it, the smoke went out and the sacrifice was consumed. और जब उसने उसे छुआ तो आग और धुआं उठा और मांस व खमीरी रोटियों की भेंट भस्म हो गई। What was it? He took it back to the scripture to prove what he was. ये क्या था? उसने गिदोन को पवित्र शास्त्र में दिए गए नियमानुसार करके दिखाया कि वह वास्तव में कौन है। Same God that was with Elijah on Mount Carmel. वह वही परमेश्वर था जो कारमेल पर्वत पर एलिया के संग था। Same one I talked to this morning. वही परमेश्वर था जिसके बारे में आज प्रात मैं बता रहा था। When you lay your soul upon his brass altar of judgment, what takes place? जब आप अपनी आत्मा उसकी पीतल की न्याय वाली वेदी पर रखते हैं तो क्या होता है? He's the same God, he'll take the sacrifice. अगर वो वही परमेश्वर है तो वह बलिदान और भेंट ग्रहण कर लेता है। He wanted to see whether that was God or not. He said, well, Moses, act upon what I tell you. मूसा देखना चाहता था कि वो परमेश्वर है या नहीं, और परमेश्वर ने कहा, मूसा जो कुछ मैं कह रहा हूँ तू वैसा कर। Now listen here tonight, brother, sister. If you want to know who God is to act upon what he says here. भाइयों बहनों, आज रात आप अब ये सुनिए, यदि आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर कौन है तो यहाँ जो वो कह रहा है आप उसका पालन करिए। Repent, every one of you, and be baptized in the name of Jesus Christ, and you'll become a miracle. आप में से प्रत्येक जन पश्चाताप करे और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले तो आप स्वयं एक आश्चर्य कर्म बन जाएंगे। That's his promise. That's what he said. Act on his word. ये उसका वादा है, ऐसा ही उसने कहा है, उसके वचन का पालन करिए। And you shall receive the gift of the Holy Ghost. For the promises unto you and to your children. और आप पवित्र आत्मा का दान पाएंगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों के लिए है। Well, that's just for the apostles. लोग कहते हैं ओ ये तो बस प्रेरितों के लिए थी। And them that's far off, and even as many as the Lord our God shall call. पर लिखा है और उन दूर दूर के लोगों के लिए भी हैं जिन्हें प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। That's where the promise is to. यही वायदा है। Act upon his word. You'll see a real miracle. उसके वचनों का पालन करिए और आप हकीकत में एक आश्चर्य कर्म देखेंगे। Something will take place when you act upon his word. जब आप उसके वचनों पर काम शुरू करेंगे तो कुछ न कुछ घटित होगा। Like Gideon did. He did what he told him to do. जैसा कि गिदोन ने किया जो कुछ उसे करने को कहा गया था। Like Noah did. He did what he told him to do. जैसे नूह ने किया जो कुछ उसे करने को कहा गया था। Like Moses did. He did what he told him to do. जैसे मूसा ने किया जो कुछ परमेश्वर ने उसे करने को कहा था। He said, throw down your stick. In other words, get rid of everything around you. मूसा से कहा कि अपनी लाठी फेंक दे। दूसरे शब्दों में तेरे चारों ओर जो कुछ है उससे बरी हो जा, उसे छोड़ दे। आमीन। Let me have it. वो सब कुछ मुझे दे दे। So I got an awful temper, give it to God. He knows how to quieten it. आप कहते हैं कि आपको बहुत क्रोध आता है, उसे परमेश्वर को सौंप दें, उसे पता है कि किस प्रकार उसे शांत करना है। God a lot of lust. He knows how to take it away. मेरे अंदर बहुत सी दुनियावी इच्छाएं हैं, उसे पता है कि किस तरह उन्हें आपसे अलग करना है। समझे? Just put it in his hands and watch what a miracle can do. That's right. All right. बस सारी कमियां उसके हाथों में सौंप दें और देखें कि वो कैसा चमत्कार कर सकता है। ये सच है, ठीक है। Moses had to work on the Word of God before, or obey the Word of God before he could see God's miracles. मूसा को परमेश्वर के वचन का पालन करना पड़ा था, इससे पहले कि वह उसके आश्चर्य कर्म को देख सकता। But after he once saw it, brother, there's nothing going to stop him then. मगर भाई जब एक बार उसने देख लिया तब उसे कोई रोक नहीं सकता था। I seen the next day with Zephyr sitting on this mule and a little Gershom on his hip, on her hip, brother, whiskers hanging down like that. मैं देख रहा हूँ कि दूसरे ही दिन वो अपनी पत्नी सिप्पोरा सहित गधी पर बैठा था और छोटा बच्चा गिरशोम उसकी गोदी में था
उसके बाल उसके चेहरे पर झूल रहे थे, वो मिस्र जा रहा था। Brother, that face was smiling out of my eyes, dancing up towards the sky. उसका मुखड़ा आनंदित था और आंखें आशा से भरी आकाश को निहार रही थीं। From a sheep herder to a mighty man of God, a man of valor, going down to deliver. एक चरवाहे से वे एक बड़े शूरवीर सूरमा में बदलकर परमेश्वर का महान जन बनकर इज़राइल को छुड़ाने जा रहा था। Look at Gideon, what happened? गिदोन को देखिए क्या हुआ। Yes, sir, going down with a crooked stick to take over a nation. मूसा को देखिए, एक सूखी लकड़ी हाथ में लेकर वो एक देश को जीतने जा रहा था, एक लाठी से। He did it. Sure he did. God told him to. उसने वैसा ही किया, निश्चित रूप से किया। परमेश्वर ने कहा था कि ऐसा ही होगा। No matter how unreal it seems, you just do what God tells you to do. चाहे वह बात कितनी भी अस्वाभाविक क्यों न लगे, केवल वही करिए जो परमेश्वर आपको करने के लिए कहता है। You'll find out that His word is still the same. आप पाएंगे कि उसके वचन आज भी वैसे ही हैं। Just get the clouds back. The sun's already shining. केवल बादलों को पीछे हटा दें। सन यानी परमेश्वर का पुत्र रूपी सूर्य आज भी चमक रहा है। Joshua, oh that great conqueror, oh the successor of Moses. यहोशू को ले, ओ वो महान विजेता और मूसा का उत्तराधिकारी था। A man that God loved, a mighty warrior, a man that God loved. वो महान योद्धा था जिससे परमेश्वर प्रेम करता था। God told him, as I was with Moses, so will I be with you. परमेश्वर ने कहा था कि जिस प्रकार मैं मूसा के साथ था, तेरे संग भी रहूंगा। But before the walls fell, Joshua marched according to the chief captain's orders around the wall 13 times before the power of God ever struck the thing. मगर इससे पहले कि यरीहो की दीवार गिरती, यहोशू ने प्रधान कप्तान प्रभु के आदेशानुसार दीवार के 13 चक्कर लगाए, इससे पहले कि परमेश्वर की सामर्थ वहां कुछ करके दिखाती। He marched around the wall and sounded the trumpet according to the word of God that the chief captain told him out there when he met him. जैसा कि प्रधान कप्तान ने वहां बाहर उसे आदेश दिया था, उसने परमेश्वर के वचन के अनुसार दीवार के चक्कर लगाए और तुरही फूंकी। He marched according to the word of God. उसने परमेश्वर के वचन के अनुसार चक्कर लगाए। What did he do? He acted upon the word before he saw the miracle. उसने क्या किया था? इससे पहले कि वह कोई आश्चर्य कर्म देखता, उसने परमेश्वर के वचन का पालन किया था। You know, just the sound of trumpet don't shake down a wall that you can run chariot races around. Sounding a trumpet. एक ऐसी दीवार जिस पर रथ दौड़ते थे, केवल तुरी फूंकने से नहीं गिर गई। But God said, just march around the walls 7 times, and the last day march 13 times. मगर परमेश्वर ने कहा था कि उसके 7 चक्कर लगाना और 7वें दिन 7 चक्कर यानी कुल 13 चक्कर लगाना। And as you go around the wall, at the last time, let the priest go before with the ark and sound the trumpet. And when the trumpet sounds, the walls will shake down. और अंतिम चक्कर में पहले याजक पीछे वाचा का संदूक रखना और तुरही फूंकना, और जब तुरही फूंकी जाएगी तो दीवार ढह जाएगी। What to do? He saw the miracle of God after he acted on the word of God. उन्होंने क्या किया? यहोशू ने जब परमेश्वर के वचन का पालन किया तो उसका अद्भुत काम देखा। Where is your miracles? Act on His word first. आपके आश्चर्य कर्म कहाँ हैं? पहले उसके वचन का पालन करिए। How could the walls be shook down and leave one little house standing? A harlot's house. किस तरह से ऐसा हुआ कि वो सारी दीवार गिर गई, मगर उस वैश्या का वो छोटा सा घर खड़ा रह गया? Because she acted on the word of God. इसलिए क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन का पालन किया था। Why did the rest of them die and she lived? बाकी सारे लोग क्यों नाश हो गए जबकि वह जीवित थी? She acted on the word of God and she saw the miracle of God. उसने परमेश्वर के वचनानुसार कार्य किया और उसका आश्चर्य कर्म देखा। That's where you find it. Act on the word. चमत्कार देख पाने का यही तरीका है, वचन के अनुसार करिए। The Hebrew children at the fiery furnace. वे इब्रानी बच्चे उस आग की भट्टी में डाले गए थे। What did they do before they saw the miracle of God? They acted on the word of God. इससे पहले कि वो परमेश्वर का चमत्कार देखते, उन्होंने क्या किया? उन्होंने परमेश्वर के वचन का पालन किया। They know He was God.
They know He was the God that had brought them up out of Egypt. वे जानते थे कि वह परमेश्वर है, वही परमेश्वर है जो उन्हें मिस्र से छुड़ा कर लाया था। They know that it was the same God that always was. That He had to be the miracle working God. वे जानते थे कि वह हमेशा से एक सा रहने वाला परमेश्वर है और वह आश्चर्य कर्म करने वाला प्रभु है और वह अद्भुत काम दिखाएगा ही। And He'd give them a commission not to bow to idols. He don't change. और परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी कि मूरत के आगे कभी मत झुकना। परमेश्वर बदलता नहीं है। Stay with my word. Don't you bow to idols. मेरे वचन में बने रहना, मूर्तों के आगे मत झुकना। What did He say? वे क्या कहते थे? Our God is able to deliver us in this fiery furnace. But nevertheless, we're going to act upon His word. हमारा परमेश्वर हमें इस आग की भट्टी में से बचा सकता है, मगर यदि वो ऐसा न भी करे तो भी हम उसके वचन का पालन करेंगे। There it was. What happened? यही बात थी। तब क्या हुआ? Then they saw the miracle of God. That God could withstand the fire. तब उन्होंने परमेश्वर के उस आश्चर्य कर्म को देखा कि परमेश्वर आग में भी उनको जीवित बचा सका। You're sick, act upon His word, see if He heals. आप बीमार हैं तो उसके वचन अनुसार करके देखिए कि वह चंगा करता है या नहीं। If you're a sinner and wants to be filled with the Holy Ghost, come repent, be baptized in the name of Jesus Christ and act upon His word. See what happens. यदि आप पापी हैं और पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं तो आइए पश्चाताप करिए और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लीजिए, उसके वचन का पालन करिए और देखिए कि क्या होता है। If you still got the world in you, you women still wearing short hair, you still wearing makeup. यदि अभी भी आप में दुनियादारी भरी है और महिलाओं, यदि आप अभी भी बनाव श्रृंगार करती और छोटे बाल रखती हैं, You men still with tempers and fussing about your denominations. और पुरुषों, आप यदि अभी भी क्रोधी स्वभाव रखते और अपने नामधारी गिरजों की डींगे मारते हैं, If you want to find out if He's still God, act upon it, lay yourself upon His altar. See what takes place. यदि आप जानना चाहते हैं कि वह आज भी वही परमेश्वर है तो वचन का पालन करिए और स्वयं को उसकी वेदी पर समर्पित करिए और देखिए कि फिर क्या होता है। God, you have to act on His word first. वह परमेश्वर है, पहले आपको उसके वचनों के अनुसार काम करना है। Daniel, before he saw the miracle of God, could deliver him from the lion's den. The first thing he did was act upon the word of God. इससे पहले कि दानियल परमेश्वर का आश्चर्य कर्म देखता और शेरों से बच पाता, पहली बात जो उसने करी वो यही थी कि उसने उसके वचनों का पालन किया। The proclamation went forth. If any man prays to any other god besides this idol for so many days, he'll be thrown in the lion's den. आज्ञा जारी हुई थी कि यदि कोई व्यक्ति इतने दिनों तक इस मूर्ति को छोड़कर किसी और ईश्वर की उपासना करेगा तो वह शेरों की मान में डाल दिया जाएगा। No man could pray to any other god but to the king. He had to be God. For 30 days. 30 दिन तक कोई भी मनुष्य किसी भी और देवता की पूजा नहीं कर सका, बस राजा की उस मूरत की पूजा करता रहा जो कि उनके लिए देवता बन गया था। देखा आपने? What did Daniel do? He acted upon the word of God. मगर दानियल ने क्या किया? वह परमेश्वर के वचन पर चला। Because when Solomon dedicated the temple, he prayed, he said, Lord, if thy people be in trouble anywhere and will look to this holy temple, then you hear from heaven. That's right. क्योंकि सुलेमान ने जब उस परमेश्वर के भवन को समर्पित किया था तो यही प्रार्थना करी थी कि प्रभु यदि कोई तेरा जन कभी भी कहीं भी किसी संकट में हो और इस पवित्र भवन की ओर मुंह करके प्रार्थना करे तो तू स्वर्ग से उसकी सुन लेना। ये ठीक बात है। Daniel acted first. The threat was you're going into the lion's den, but Daniel acted on the word of God. दानियल ने पहले वचन का पालन किया। धमकी ये थी कि तुझे शेरों की मान में डाल दिया जाएगा, मगर उसने परमेश्वर के वचन का पालन किया। He knew that God was still God, just like Gideon did. वह जानता था कि परमेश्वर आज भी वही परमेश्वर है जैसे कि गिदोन ने किया था। He knew that God, if He was still God, then where's His miracles? वो जानता था कि यदि परमेश्वर आज भी वही परमेश्वर है तो उसके आश्चर्य कर्म कहाँ हैं।